क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है प्रीमियर लीग एक तो इतना फास्ट पेस्ड है, इसमें बार बार वीआर ऐसा घुसते रहेगा ना, तो यही चलता रहेगा। वो रेफरल सिस्टम भी मुझे लगता है बेस्ट है कि टीम्स कैन रेफर व्हेन दे फील कि रेफरी का डिसीजन से ट्वाइस इन अ गेम ओनली, बस वो ही चलने वाला है। स्मार्ट अबाउट व्हेन टू यूज, ये बार बार घुसने वाला नहीं चलने वाला है। एंड क्रिकेट में भी रेफरल खत्म हो जाता है, एंड व्हेन यू सी अ मिस्टेक यू जस्ट एक्सेप्ट इट कि यार रेफरल खत्म हो गया था, तो अभी क्या कर सकते हैं। एक यूनिटी होना जरूरी है, बिकॉज दिस सिस्टम डेफिनेटली नीड्स टू बी चेंज, वो तो पक्का है। Can't believe it. I can't believe it. Football, but hell. But Alok has come under some fire on Twitter. इसको मालूम है, a lot of rival fans have told him कि यार तुम लोग के साथ हो क्या, तेरे को मालूम पड़ेगा ये वो, क्योंकि तुम्हारे साथ में एक दिन होने वाला ही है। But definitely, it's a large point. You give definitely, yeah. So for that, what Ange has said actually, कि if you see the entire quote, right? उसने कहा है कि referees have come under so much of scrutiny right now. जो भी सुनील you were saying कि उसका हर डिसीजन, जो ऑन फील्ड रेफरी है, उसका हर डिसीजन ऊपर जाता है वीआर पे, ठीक है। वीआर वाला 10 मिनट लेता है टू फाइंड आउट कि उसमें ये गलती है क्या, उसका बाल ऑफसाइड है क्या, या फिर उसका जो भी है, राइट। एंड देन द रेफरीज टुडे डू नॉट फील सेफ इनफ टू एक्चुअली गिव एनी काइंड ऑफ अ डिसीजन ऑन द पिच। आप ऑफसाइड फ्लैग को बोला गया है कि जब गोल जाता है तो तुम फ्लैग ऊपर करो ही मत, हम वीआर में चेक करेंगे कि वो फ्लैग मतलब ऑफसाइड है कि नहीं। तो लॉट ऑफ टाइम्स they just allow the goal to happen and then raise the flag, or probably then VAR checks after that ke hai ki nahi. Now on field referees are scared today to even make a the smallest call. अब लीग कप के मैचेस देखो सुनील, कितने मस्त लगते हैं, VAR है नहीं, इंटरवेंशंस लंबे होते नहीं है। अब VAR, there was one point that I read somewhere, अनिमेश, के जो कह रहा था कि VAR स्टॉप्स के वजह से, जो 5-5 मिनट का स्टॉप होता है, the player's body is cooled down. And then immediately after that, you are expected to make a 50-minute sprint. Injuries will start increasing for players, like muscle injuries. ये साल we are seeing that so many muscle injuries are happening to players. इतने fast paced game में इतनी बार अगर रुक रहा है तो it's a problem. तो Ange का जो quote है, it's about this, कि I am going to accept what it is because the current referees are under so much of scrutiny at all times कि उनसे एरर होने वाला है. We accept it as a part and parcel of the game. And when you start playing football, Sunil, you know that you have certain control on the referees. If today you start undermining the on-field calls, what he said was, if you today start undermining the on-field calls, somebody in front of the TV screen miles away from the pitch is going to make that call for you, and then you don't have any control over what's happening. और VAR में अभी वही हो रहा है. I think there should be some authority to the on-field referees, जो उनके कॉल को हम रिस्पेक्ट करें, जो पहले हो रहा था. थोड़े कॉल आपके फेवर में जाएंगे, थोड़े कॉल किसी और के फेवर में जाएंगे, but eventually it evens out. मुझे क्या देखना, when the referee has gone to the screen now, every time he's been told to go to the screen and look, it should not mean 100% he is wrong. It should be like, look, this is what we think, but do you still think it is such a big mistake for you? Clear and obvious तूने इतना mistake किया है, वो basically you assume the referee has made a very big mistake. There's something he thought when he saw, which even though he's seeing right now, he might still think in his mind कि maybe I'm not that wrong यार, इतने क्या हुआ? But as per law, he has to mostly overturn it, right? लेकिन देख वापस ये ड्रैग ऑन हो गया, तो सुनने मैं अभी भी बोलूंगा, आर्टेटा का जो ये बोलना था वो भी एक करेक्ट बात है कि यार जितना मार्जिन्स आर सो लेस, सिटी को हराना है तो एक एक पॉइंट मैटर करता है यार. इतना एफर्ट, इंपॉर्टेंट गेम था. तो मुझे अभी भी आर्टेटा से वो बात से एग्री करूंगा, जब ऐसा कोई मैनेजर आके बोले तो बाकी मैनेजर्स हैव टू गेट टुगेदर एंड मेक. बट अगेन सुनील, द थिंग इज लाइक यू सेड राइट नाउ के यू वर जो कॉल्स लिए गए थे आर्टेटा के अगेंस्ट, you didn't feel कि they were like so wrong against Arsenal, right? कि वो बॉल शायद बाहर नहीं गया था, conclusively नहीं figure out कर सकते, foul भी, I don't think that you felt that it was a foul, right? In that case, then tomorrow every manager is going to come out when a smallest of the decision goes against them to say कि यार referee का ये problem है. They're just going to take the responsibility out. उसका explanation एक ही दूंगा कि अगर वो satisfied नहीं है या Arsenal satisfied, क्योंकि किधर तो स्काई स्पोर्ट्स के पैनल में भी देखेगा तो आधे डिसएग्री कर रहे हैं, आधे एग्री कर रहे हैं. बट इसका सॉल्यूशन मैं ये बोलूंगा कि अगर वीआर इतना कंक्लूसिव नहीं है, देन प्रीमियर लीग शुड प्रॉब्ली कम टुगेदर एंड मेक सम चेंज. या तो थोड़ा उसका इंटरवेंशन कम कर दो, बिकॉज जब उसको यूज करने के बाद आधा डिवाइडेड है और इतने डिबेट्स हो रहे हैं और पीपल आर नॉट सैटिस्फाइड, देन व्हाट इज द पॉइंट? एक ऑफसाइड जो है, एक ऑफसाइड रखना चाहिए वीआर, जो वर्ल्ड कप में किया था, ऑफसाइड, ऑटोमेटेड ऑफसाइड.
आपको डायरेक्टली वो लाइन आके पता चलता है कि आपका नी बाहर है या नहीं है, जो भी है. यू मेक ऑफसाइड वीएआर बेसिस पे, ठीक है. यू मेक गोल लाइन टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन जैसे अभी आर्सेनल का हुआ था कि बॉल बाहर गया है कि नहीं गया है, इट्स वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव इन दैट केस. बॉल एक तो गया है बाहर या फिर नहीं गया है, देयर इज नो सब्जेक्टिविटी इन देयर. फॉर दीज Correct. थिंग्स यू कीप वीएआर. If there is no, whenever there is going to be a subjectivity or human decision making is going to come into picture, just rely on the on-field call. You have 3 referees and a 4th official on field to actually see कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है. आप कोई भी टैकल जब VAR में देखोगे स्लो मोशन पे, every single tackle is going to look bad because Correct. because स्लो मोशन में वो खराब लगेगा ही every tackle. Alok, to your point, ठीक है, because before we go back into that, मुझे तूने जो पहले एक बोला, it's in my head ना, and I want to sum it up with that because it was very, what you said, nail on the head. Every small call, every manager, both of what you have said will keep coming out, and that builds undue pressure. ठीक है, and to sum it up, Arsenal benefited against United where Miguelas didn't get a penalty. ठीक है, Yeah. they would have lost points there. We lost Yeah. points there. Eventually, मेरे ख्याल से if we let this go on for 1 year without complaining, and I've been complaining the most, ठीक है, if it just stays the same ना, चलेगा, क्योंकि सबको वो हो रहा है. लेकिन क्या हुआ है, क्लॉप आके कुछ बोलता है, लिवरपूल स्टार्ट गेटिंग पेनल्टीज, आर्टेटा कम्स एंड सेज समथिंग, दे गेट पेनल्टीज. हम लोग को एक साल के ज्यादा, आई थिंक मोर देन अ ईयर, वी ओनली गॉट 4 पेनल्टीज सिंस पीपल केम अप अगेंस्ट अस एंड सेड यूनाइटेड गेट्स इजी पेनल्टीज. ठीक है, ब्रूनो स्कोर्स लॉट ऑफ पेनल्टीज. I feel it's undue advantage, disadvantage on managers' ability to come out and influence that way also. क्योंकि जो people say Ferguson करता था, अभी तुम लोग तो फर्क क्या गिरा, right? I feel VAR should not be used as a tool in a press conference by managers to control narratives, and it should be used independently to improve technology. लेकिन थोड़ा ज्यादा चला गया उधर अभी. Let's move on. Let's talk about things which are not in our control but are beautiful to watch, like Glenn Maxwell's innings last night. भाई मतलब मैंने आज तक लाइफ में ऐसा इनिंग्स नहीं देखा है. मतलब सूर्य कुमार को यू थी कि वो मुंबई इंडियंस के लिए कभी कभी पागल हो जाता है, बट ऐसा इनिंग्स एक हाथ से मार रहा है. बट एक अफगानिस्तान को मैं एक फॉल्ट करूंगा कि मैं मतलब घर पे पागल हो रहा था, आई वाज पुलिंग माय हेयर आउट बिकॉज मेरे को नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया सेमीज में आए या फिर ऑस्ट्रेलिया कम से कम जीते तो नहीं, मोरल हाई नहीं हो जाए. अफगानिस्तान पूरा गोल्ड वाइट थोड़ा डाल सकते थे, उसको थोड़ा मेहनत करा सकते थे, उसको पैर पे डाल रहे हैं, वो मार रहा है, घुमा रहा है भाई, खड़े खड़े ये लो ऐसे. अरे सॉरी, वो लास्ट वाला बहुत वाइट था, यू कुड नॉट रीच इट. ये वापस इधर डालते तुम लोग मारो. बट इट हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई एवर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स. यस, टी20 में तो 4 ओवर तक कोई टी20 में पागल होता है, 6 ओवर तक. दिस वाज लाइक अ 15-20 over onslaught. I would still say Herschel Gibbs is number 1 for me against Australia when they changed 194 434 because that was at a time where T20 didn't even exist ना. वो अलग टाइम था. But that being said, वो I think Johannesburg में हुआ था मैच, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, जोहान्सबर्ग. वर्ल्ड कप वाला 2006 में, I think 5 में 6. What do you think? तूने देखा करता? I think this surpasses as Kapil Dev's 175 against Zimbabwe. This probably is the greatest. This probably is the greatest World Cup knock ever, and definitely in top 3 ODI knocks ever. And और उस ये knock का importance उसके वजह से और बढ़ता है कि he was injured, he couldn't walk. और उसके बावजूद जिस तरह से वो shot, like last 3 overs तो he went berserk. Some of the shots that he has played in the last 3 overs were absolutely amazing. I think मुझे कुलाबा जाके दारू पीना है बस, उसका मूड हो गया था, मेरे को निकाल के करता है. And dressing room was like, I think सब लोग ने छोड़ दिया था कि सबको लगा था कि मैच हम लोग हारने वाले हैं. ये dressing room was enjoying so much. सब लोग पागल जैसे हंस रहे थे मैच के वक्त. Now Australia, I feel, is too motivated. They were looking like they will make it to the semi-finals but lose. Now a game like this means they are anyway serial winners. Okay, they have a mentality. I can already see Australia coming in the finals because South Africa will play out of their minds and skin. Because South Africa का वो mental problem ही है, उन लोगों को ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएंगे क्या सेमीज? क्या अफगानिस्तान पका लिया तुम लोग यार, क्या खाली पीली, किसी को मोटिवेशन नहीं चाहिए था, दे दिया ऐसे शॉट इन. But Australia, you expect more often than not Australia to be there always. कितने भी खराब खेलने दे रहे होगे तो वो एंड में they know how to make these changes in their approach. But this time they won that scary ना आलोक. ये game के बाद so close to semi-final is exactly a team like this. You need this and they got to pick me up हो गया उनको और कुछ नहीं. सेमीज में तेरा क्या लग रहा है, कौन आएगा इंडिया के सामने? अभी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका तो हो गया. I feel it's gonna be New Zealand. I feel, but I don't want Pakistan
because कुछ भी हो सकता है उस गेम में. Then nerves get better of you sometimes. But India New Zealand would be amazing. I think मुंबई में होगा अगर इंडिया न्यूजीलैंड होगा तो सेमीफाइनल. मैं शायद ज्यादा मेरा पूरा थॉट वही है कि मेरे को कोलकाता जाना नहीं है इंडिया पाकिस्तान. इट्स इजियर, तो मुझे चाहिए न्यूजीलैंड एंड मुझे वो बदला भी चाहिए यार. पिछली बार जो सेमीज में आ रहे थे, बट वी गेट वेरी शेकी अगेंस्ट इंडिया. वापस विलियमसन भी आ गया, मेरे को डर लग रहा है. विलियमसन एंड सादिया बोथ बैक एट द राइट टाइम उनके लिए, तो इतना इजी गेम नहीं है. उनका इतना ग्रेट नहीं है. आई थिंक आई प्रेफर न्यूजीलैंड यार ओवर पाकिस्तान. पाकिस्तान See, भी ऑस्ट्रेलिया जैसा है कि एक all 4 teams that are gonna be in the semifinals are going to be tough to beat. मतलब कोई न्यूजीलैंड, अगर तुम साउथ अफ्रीका लो, ऑस्ट्रेलिया लो, पाकिस्तान लो, कोई भी लो, it's going to be difficult only. So you just have to beat whatever comes in front of you. New Zealand I feel is easier to beat because there are no like the burden of history on top of your head. It's just like you just take the game as a game. With Pakistan there is like बहुत सारी चीजें आ जाती हैं and then the smallest of the mistakes can create like a big ruckus for you then. So I feel New Zealand is a safe approach for us. और न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका आए ना तो कम से कम मेरे को लगता है इंडिया अगर नहीं जीते तो कम से कम ये दोनों टीम में से एक जीते यार. एक नया विनर का जरूरत है वर्ल्ड कप में भी. बिकॉज यू सी कि बाकी टीम्स आर गेटिंग मोर शिट एंड बड़े टीम्स अभी 4-5 ही बचे हैं यार. बहुत सारे टीम्स साइड. England is so shit this season. Sri Lanka is so bad. Alok, England has to kick out the Deadwood. लेकिन चलो गाइस, थोड़ा वापस लंबा हो रहा है. Predictions are for you New Zealand. For you wish New Zealand, but you think अगर इंडिया नहीं जीते तो I want South Africa. I think their cricket needs a boost also. Yeah. अगर इंडिया नहीं तो न्यूजीलैंड. I would say South Africa. I think they were having इतना expectation नहीं था उन लोग पे. लेकिन apart from the game against us, they played some very entertaining cricket apart of all the other teams combined, right? So for that, maybe final may will be entertaining, but God knows. Chalo guys, rounding up this episode, predictions for match day 12 before the international break. वापस क्यों आ रहा है एक ब्रेक मालूम नहीं है. ब्रेक पे ब्रेक मार रहे हैं फ्री का ये लोग. Alok, so for this week we are going to be talking about United Luton, Arsenal Burnley, or Chelsea Man City. But obviously Spurs का भी you give us your prediction and your thought, ठीक है? So first let's start off with you. Your predictions for United Luton. I think it should be win for United, but I don't think that it's going to be easy win because Luton Tottenham को तकलीफ दिया है. Luton ने नैरो विन था. उन्होंने लिवरपूल को ऑलमोस्ट हरा दिया था. वो लुइस डियास का गोल नहीं होता तो फिर would have been difficult for them. वो भी सेम यूनाइटेड से गोल देख गया है. इफ यू वॉच द गेम, यूनाइटेड के गोल के बाद वो फुलहैम का थोड़ा शेकीनेस दिखना चालू हो गया था. दे डिड नॉट क्लियर द बॉल ट्वाइस और थ्राइस एंड देन द बॉल फेल टू हिम. सेम गोल गया है उनका ल्यूटन का, तो आई मीन लिवरपूल का. तो आई फील यूनाइटेड विल हैव टू बी एट देयर रियली बेस्ट. आई थिंक जो फुलहैम के साथ तुम लोग जो लेट विनर्स निकाल के आ रहे हो वो कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प करेगा. आई फील विल बी अ विन होम पे, स्पेशली ओल्ड ट्रैफर्ड पे. तो आई थिंक विल बी अ ग्रेट ट्रिप फॉर ल्यूटन प्लेयर्स डेफिनेटली. इतने साल के बाद वो प्रीमियर लीग में आते हैं और ग्रेट ट्रिप फॉर देम. सो दे विल बी अप फॉर इट. वो वेम्बली ट्रिप होता था ना सुनील पहले कि लाइक द टीम्स वुड गो टू वेम्बली, जो छोटे टीम्स है, फॉर देम इट्स गोइंग टू बी द लाइक द बिगेस्ट डेज ऑफ देयर लाइव्स. तो दे विल बी एट इट. तो ओल्ड ट्रैफर्ड में वैसे ही है. ल्यूटन विल बी एट इट फ्रॉम द पॉइंट 1 to 90th minute. I feel it's a win for United. 1-0 या 2-1. Arsenal Burnley. I think easy win for Arsenal. 2-0 I feel. Burnley are really bad this season. I don't think, I thought कि they play attacking football, कुछ adaptability होगा वहाँ पे and company कुछ करेगा, लेकिन आज तो कुछ दिख रहा नहीं है. Fair enough, Arsenal easy. और फिर main Chelsea Man City. Man City for I think 3-1 for Man City. गोल मारेगा चेल्सी एक गोल मार लेगा. आई थिंक जैक्सन हैट्रिक के बाद थोड़ा बेटर हुआ रहेगा. मुद्रिक दे विल गेट अ गोल अराउंड. आई एम नॉट सेइंग दैट दे विल, कहीं ना कहीं से एक गोल आ जाएगा उनके लिए, बट सिटी विल बी जस्ट टू मच फॉर देम टू हैंडल. देयर अटैक विल बी टू मच फॉर देम टू हैंडल. तो 3-1 टू सिटी. तो पार्मा फॉर मी, आई थिंक पार्मा कुड इट बी, यू नो, या पेनल्टी मिल सकता है यार. मतलब हो सकता है पेनल्टी मिल सकती है. सॉरी. तो मेरा प्रेडिक्शन, मेरे को लगता है यूनाइटेड ल्यूटन में 2-0 यूनाइटेड, ठीक है. एंड आर्सेनल बर्नली में आई थिंक 3-0 आर्सेनल.
3-0 आर्सेनल. अच्छा. हाँ, एंड चेल्सी मैन सिटी में मुझे चाहिए कि सिटी चेल्सी को कुत्ते की तरह हराए, बिकॉज वो जैक्सन हैट्रिक ने मुझे बहुत इरिटेट किया है. अरे हम लोग लाइव देखे कितना वो ऐसे सेलिब्रेट ठीक है. हाँ, वो सेलिब्रेट पे सू कर रहे हैं, रोनाल्डो सेलिब्रेशन. प्लेयर आई अंडरस्टैंड ही इज हैड अ टफ टाइम इन फ्रंट ऑफ गोल, ही सेलिब्रेट. एंड बहुत सारे ट्विटर पे चालू हो गए, इसने जैक्सन ने रैशफोर्ड के पहले हैट्रिक मारा है, तो मुझे या आई नो उसी तरह आ रहा है, तो आई विल गो फॉर अ 4-0. 4-0. Yeah, I think Chelsea needs some humbling after that defeat, after that win, जो भी है. तो 3 अच्छा है. 4-0. I think I will change it to 4-0. Makes sense now. 4-0. ठीक है. अच्छा, for me I'll quickly do it. United, Luton. I feel कि यार मैं हर बार गोल के लिए बोलता हूँ and we should score. And I feel Sunil with United has been getting lucky with his 1-0 predictions. We've got 2 disallowed goals every time. I will say 3-0 to United. For Chelsea, for Arsenal, Burnley, again Arsenal इतना अच्छा लग रहा नहीं है, but ठीक है, against Burnley कुछ तो करेगा ही, तो maybe 3-1. And Chelsea, City, I don't see Chelsea doing much honestly. कुछ तो पहुंच कर सकता है शायद, but for official prediction sake, I will say 4-1. For maybe in the heart, I feel could be a draw, could be a draw. Actually अपना गट की फीलिंग साथ में जाना चाहिए था. पिछली बार बार बोल रहा था पहुंच कुछ तो करेगा. He should have gone with this gut feeling. चलेगा, वो तो टेंशन नहीं है. And आलोक, स्पर्स का किसके सामने? नहीं वही आलोक, before we wrap up, Spurs Wolves का prediction दे दे तू. Very difficult. I feel it's going to be a draw. Like दिल से सोचूं तो it's going to be a 2-1 win for Tottenham. But अगर injuries और ये सारी चीजें देखूं, Wolves also got a result against City, so we can't just remove them entirely from the equation here. So I feel it's going to be a draw. 1-1 draw या फिर goalless draw हो सकता है ये गेम. तुम्हारा मीट एंड ग्रीट यही गेम के लिए क्या? सॉरी, मीट एंड ग्रीट तुम्हारा यही गेम के लिए? क्या है, मुझे आवाज नहीं आ रहा है ठीक से. डेडली किंग जो आने वाला है यही गेम है कि कोई आगे वाला? नहीं, अच्छा, नहीं, एस्टन विला गेम. ओके, ठीक है, टाइम. या बट गेटिंग डेडली किंग इज अ बिग थिंग यार. डेडली किंग वाज लाइक प्रॉपर लेजेंड. वी वर एक्चुअली हम लोग वही क्लब से बात कर रहे थे पिछले 6 महीने से कि कुछ ना कुछ करो. तो दे वर गोइंग टू कम इनिशियली इन द मंथ ऑफ मे, जब इंडिया में कुछ तो एक अंडर 19 कंपटीशन था, तो अंडर 19 टीम को लेके आने वाले थे. तो मुंबई में वो रहने वाले थे 10-15 दिन, तब जर्मन डिफो आने वाला था. बट लेडली किंग, ऑजी, two of the greatest players that have played for Tottenham, would be amazing. 3 दिन मुंबई में रहने वाले हैं वो. तो मीट एंड ग्रीट संडे को है, बट देन फ्राइडे सैटरडे हम लोग उनके साथ रहेंगे जो वर्किंग कमिटी है. तो 10 years सेलिब्रेशन के लिए ना. या मतलब 10 ईयर या ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 10 years हो चुके हैं. बट अभी हम लोग पिछले 2 साल से उनको बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ करो. तो फिर इवेंचुअली दे लाइक caved in, और उनको पता है अभी कि इंडिया मार्केट इज जस्ट टू बिग फॉर देम टू नॉट. Congratulations for the anniversary. And मैं बोलना चाहूंगा लाइक स्पर्स जब चालू हुआ था, सूरज शर्मा था जो सूरज इज गोइंग टू बी हियर. सूरज को मैंने फोन किया, बताया कि ये लोग आ रहे हैं. सूरज ने दूसरे दिन फ्लाइट बुक कर दिया. उसने कहा कि यार पहली बार टॉटनहम इंडिया में आ रहे हैं, आई कांट नॉट बी हियर. चलो, सूरज आ रहा है. बहुत सालों बाद मिलूंगा, बिकॉज ही यूज्ड टू कम टू थ्री वाइज मंकीज अ लॉट. तभी स्पर्स का स्क्रीनिंग थ्री वाइज में होता था. एंड उसने, मैं जब गया था उधर, तो उसने मुझे टॉटनहम गेम भी लेके गया था एक. ग्रेट गाय. चलो, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम अगेन. Yes. मैंने कहा उसको कि सुनील would be really happy that you are here and you finally, क्योंकि मुझे याद है जब टॉटनहम जस्ट नया, when I became a part of Tottenham 2014 वर्ल्ड कप के अराउंड, मुंबई स्पर्स बेसिकली. तो हम एक मैच देखने गए थे टॉटनहम का थ्री वाइज मंकीज में, टॉटनहम QPR. पोचेटिनो का फर्स्ट सीजन था वो. हमने 4-0 जीता था. हम लोग 6 लोग बैठे थे. तुम्हारे पुराने थ्री वाइज मंकीज का जो स्क्रीनिंग एरिया था वहां पे, मेरे आजू बाजू था अय्यर, कर्ण, सुनील, और हम ऐसे ही चुपचाप बैठे थे. एट वन पॉइंट दीज पीपल स्टार्टेड सिंगिंग फॉर अस एंड chanting oh when the Spurs go marching in and all that. And right after that was United's game. Okay, United and कोई मतलब इतना बड़ा टीम नहीं था, छोटा टीम कोई तो था. And before the game, like people started coming into the room. धीरे धीरे 50, 60, 100 लोग हो गए.
चिल्ला रहे हैं, वो टेबल पे चढ़ के रूफ पे बजा रहे हैं ऑल ऑफ दैट। तो मेरे साथ तब मुंबई स्पर्स का जो चेयरमैन था आदित्य था, एंड मैं आदित्य को बोला कि ब्रो आई वांट टू सी मुंबई स्पर्स बिकम लाइक दिस वन डे, एंड दैट वाज लाइक माय ड्रीम वाज ऑलवेज टू टेक मुंबई स्पर्स वेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड मुंबई वाज। तो अभी हो रहा है धीरे धीरे। फॉर द एनएलडी दिस सीजन वी हैड, वही तुझे बोला कि हाउ टेबल्स हैव टर्न्ड, अभी हमारा 10 लोग आया है, तुम्हारा 60-70 लोग आ रहे हैं। तो या ल्यूटन गेम को हमारे 40 लोग गए थे, 40-50 लोग गए थे, विच इज अनहर्ड ऑफ। एनएलडी को अभी लोग मैसेज करते रहते हैं लेट नाइट गेम्स किसी के घर पे हम देख सकते हैं क्या, एंड लाइक एटलीस्ट 15-30 पीपल, लाइक 15-20 पीपल गो टू समबडीज हाउस एंड वॉच द गेम टुगेदर। तो चेंज बहुत हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स जो पिच पे हो रहा है उसके वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। वो जब कॉन्टे खेल रहा था तब मैं खुद स्क्रीनिंग जाने का बंद कर दिया था, बट दिस इज वर्किंग ग्रेट फॉर अस, एंड लाइक लेट्स होप नेक्स्ट दिस सीजन अगर यूनाइटेड टॉटनहम का कुछ रहेगा सुनील, तो लेट्स डू जॉइंट स्क्रीनिंग और समथिंग फॉर द रिटर्न लेग। Build up on this, like I'm just happy for you guys, especially for you। मेरे को मालूम है एटलीस्ट कि तू बहुत काम कर रहा है। जब भी फुटबॉल पंडित्स का करते थे एपिसोड, तभी सूरज एंड यू हैड बहुत कम तभी, राइट? एंड तभी द वे सूरज स्पोक अबाउट इट, एंड आई एम लाइक मेरे को मालूम भी नहीं था इतने सालों से कोई स्पर्स का इतना काम कर रहा है, जेन्युइनली काम कर रहा है। These guys I've seen them doing, लिवरपूल I've seen, आर्सेनल का सुना है, चेल्सी का सुना है, ठीक है, बहुत लोग हैं, बट द वे यू गाइस हैव बीन डूइंग, उन लोगों को कुछ तो एक्सपोजर सब लोग को मिला है, सब लोग को गॉट सम एक्सपोजर, सम लेजेंड मीटअप, यू गाइस हैव गॉट कुछ नहीं। So for just for that, and दिवाली के बाद तुम लोग को इतना अच्छा मीटअप हो रहा है, I'm very happy for you guys. But ठीक है, let's end this episode, guys. And again, but congratulations to you, Alok. All the hard work coming out for you guys, and you can enjoy it. Sunil, we will be back for Diwali धमाका. Hopefully off the field धमाका, कुछ नीचे on the field. सीधे साधा जीत दो 2 गेम यार, टेंशन मत हो इधर। बाल गिर रहे, बच्चा आ रहा है, टेंशन हो रहा है बहुत ऐसे भी लाइफ में। अपने को पता भी चल जाएगा वर्ल्ड कप सेमीज में कौन किसको खेलेगा। करेक्ट, फुटबॉल के क्रिकेट धमाका भी होगा। Alok, thank you so much for joining us at this time in the morning. Thank you so much for calling, man. Yeah. Always, yeah, and hopefully this becomes a weekly thing. Jaise we can schedule a show and we can have our own conversation. Sure, Sunil, thank you for coming. मतलब you have no option. You have to meet me at my house. तेरे को घंटा कुछ option है. So everyone tuning in, लंबा episode है, but I can't break this into 2 parts because actually अच्छा flow रहा. We apologize इतना लंबा है, but please देख लो, ठीक है? All the games we spoke about, leave your predictions there too. World Cup predictions also top 4 and World Cup winner in case India doesn't win. हम ऐसे कुछ नहीं बोल रहे कि इंडिया नहीं जीतेगा, लेकिन ऑप्शन ही क्या है? ऑस्ट्रेलिया देखना है क्या? जीतना नहीं ना, तो समझ लो। चलो guys, thank you so much. See you. Bye bye. Yes.